وقفہ جب آئے گا سب بڑھ جائیں گے. اچھا رمضان کے روزے ہیں, کہا ایک مہینے کے لیے پانی روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے تنوں میں خشکی آئے گی, پھر سال بھر تو نے پیٹ بھر کے کھانا ہے, پھر سارے کے سارے ہرے بھرے ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا رمضان میں. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ولیوں کے انداز کیا ہے, سمجھانے کے انداز کیا ہے. فرمایا حضور پھر کیا کرے؟ کہا ایسا کرو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دل صاف ہو جائے, یہ جنگل صاف ہو جائے, کسی مکان رہنے والے کے قابل بن جائے, تو حضور پھر طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اگر اسے صاف کرنا چاہتے ہو تو اسے آگ لگا دو. میں دیکھ رہا ہوں چاند آنکھوں میں آنسو, سمجھ رہے ہیں میری بات کو. پھر اسے آگ لگا دو. کہا حضور آگ کیسے لگا دیں؟ فرمایا دل ایک جنگل ہے, اور جنگل کی صفائی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آگ نہیں لگائی جاتی. کہا آگ کس آگ کی بات کرتے ہیں؟ کہا یہی آگ جو ہر لمحہ ہم ذکر کیا کرتے ہیں, تمہیں دعوت دیا کرتے ہیں. یہ دل کی صفائی تب ہو سکتی ہے جب یار کی عشق کی بات آتی ہے. ہم نے صرف عشق کی بات کی ہے کہ تم عشق کی آگ لگاؤ. جب عشق کی آگ تمہارے دل میں لگ جائے گی سارے درخت ختم ہو جائیں گے. جب یار کی محبت آ جائے گی تو جس کی محبت میں تو گھومتا ہے پھر اس کی محبت مل جائے گی. اور سنو, یہ ولی کامل, یہ تصوف کی باتیں ہیں. موضوع چھڑا ہے اولیاء اللہ کا مہینہ چل رہا ہے, میں نے سوچا جس پر گفتگو کرتے محبت الہی اس کی چاشنی کا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, میں نام لے رہا ہوں, جو نام سے واقفیت رکھتے ہوں گے وہ محبت سے مجھے جواب بھی دیں گے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جنہیں کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ. آپ کو پتہ ہے نا محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ بزرگوں کو خبر ہوگی, لیکن سنو میں اس کی تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں. آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے رنگے ہوئے, رات کا پہر ہے, تہجد میں ہے, رب کی طرف سے آواز آئی, نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو؟ بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں, اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کیا بننا چاہتے ہو؟ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو؟ معشوق بننا چاہتے ہو یا عاشق بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ محب مطلب یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرو گے, یا پھر محبوب بننا چاہتے ہو کہ ہم تم سے محبت کریں؟ تمہاری مرضی ہے, جو چاہو پسند کر لو. ارے اس کا مقام کیا ہوگا؟ رب جس سے پوچھے کیا بننا چاہتے ہو, جس سے رب پوچھے کیا بننا چاہتے ہو. آپ نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں جا کر اس کی قدموں کے بوسے لیے, امی جان مجھے یہ پیغام آیا ہے, آواز آئی ہے, آپ میری مدد فرمائیے, میں کیا بنوں؟ ماں نے کہا مجھے کیا خبر ہے, چلے جاؤ دلی کے ایک چوک پر, وہاں ایک تندور پہ روٹیاں بنانے والا کھڑا ہے, جا کر اس سے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا کیا بننا ہے. کہا وہ تندور پہ روٹیاں لگانے والے, وہ آگ لگانے والے. کہا یہ آگ لگانے والوں کا ہی کام ہے, وہی بتا سکتے محبوب بننا یا محب بننا. ہر کسی کو خبر نہیں کیا بننا ہے. جاؤ. آپ وہاں پہنچے. ارے جس کے پاس خواجہ نظام الدین اولیاء چل کر جائیں, جس کے پاس اللہ کا محبوب چل کر جائے, جو تندور پر روٹیاں لگانے والے کوئی عام ہوں گے؟ وہ کوئی عام ہوں گے؟ جس کے پاس محبوب چل کر جائیں, وہ روٹیاں بنا رہے ہیں. آپ نے جا کر سلام کیا, کہا مجھے اس طرح سے آواز آئی ہے, آپ فرمائیے میں کیا بنوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے روٹیاں بنانا سیکھو, مجھ سے آگ لگانا سیکھو, مجھے کیا خبر جو تم بات کر رہے ہو مجھے تو نہیں سمجھ آئی, یہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے, کسی بڑے کے پاس جاؤ. کہا جو آپ نے بات کی ہے نا آگ لگانا سیکھو, میں وہی سیکھنے آیا ہوں, وہی سیکھنے آیا ہوں, بس وہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ, کل اسی ٹائم واپس آنا. کل اسی ٹائم خواجہ نظام الدین اولیاء دوبارہ, رات گزر گئی, تڑپتے رہے, انتظار کرتے رہے, وہاں جواب دینا ہے, وہاں سے آفر جو آئی ہے جواب دینا. دوسرے دن پہنچے, نہ تندور والا نظر آیا نہ تندور نظر آیا. عجیب معاملہ ہو گیا. آپ ساری رات انتظار کرتے رہے, کل جواب ملنا ہے, میں نے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آج نہ تندور نظر آتا ہے نہ تندور والا نظر آتا ہے. یہ سارے معاملہ کیا ہوا؟ آپ نے قریب والوں سے پوچھا کہ وہ ایک یہاں بزرگ ہوتے تھے جو روٹیاں بناتے تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے انہیں جنگل کی طرف جاتے دیکھا ہے, باقی خبر نہیں رکھتے, ہم نے جنگل کی طرف جاتے دیکھا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء چلتے چلتے جنگل میں پہنچے, اور جا کر وہاں دیکھا تو وہی بزرگ ہے, لیکن عجیب معاملہ ہے, جسم کے اعضاء کٹے ہوئے, ہاتھ کہیں رکھے ہیں, بازو کہیں رکھے ہیں, سر کہیں رکھا ہے,
पूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रोने लगे, कहा है जवान, अगर तुमने वादा वफा नहीं करना था, मुझे बुलाया क्यों था? मैं सारी रात तड़पता रहा, इंतजार करता रहा, और मैं जब चलकर आपके पास आया, आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे फिर क्या होता है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि हड्डियों में जान आती है, हड्डियों में जान आती है, गोश्त कांपने लगता है। चंद लम्हों में जान वापिस आ गई। उस बुजुर्ग, उस वलीए कामिल ने जवाब दिया, निजामुद्दीन औलिया, तुमने सारा मंजर देख लिया है। हाँ, ये मंजर ऐसा था जो तुमने मुझसे सवाल किया था, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, ये मैं तुम्हें सिखा सकता था। अगर तुम आशिक बनोगे तो फिर तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब तक रब राजी नहीं होगा तुम्हारे अज़ा के टुकड़े होते चले जाएंगे। अगर आशिक बनोगे तो वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि तुम माशूक बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। अब ये सुनो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब उन बुजुर्गों को देखा कि जिस्म के टुकड़े हुए रब को राजी करना कोई आसान है? उस रब को भूल चुके हम जो हमसे इतनी मोहब्बत करने वाला, इतनी मोहब्बत करता है, उसको हम भूल चुके। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाते कि यहूदी औरत आई, भूखी थी, मुझसे कुछ मांगा, मेरे घर में 2 खजूरें थी, मैंने 2 खजूरें लाकर पेश कर दी। फरमाती 2 बच्चे भी साथ थे, उसने 1 खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी। फरमाती मैंने मंजर देखा, मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं रोने लगी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो यहूदी औरत चली गई। चंद लम्हों में महबूब तशरीफ लाए, मैंने रोते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला समझ में नहीं आया। अगर माँ भी भूखी थी, उसने मुझसे आकर कहा था 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चे भी भूखे थे, मेरे घर में 2 खजूरें मौजूद थी, मैंने वो पेश कर दी। होना तो ये चाहिए था 1 खजूर माँ खुद खाती, 1 खजूर बच्चों को खिला देती, बात तो तब भी हो सकती थी ना, गुजारा तब भी हो सकता था। वो माँ भी तो बेचारी भूखी थी, लेकिन मैंने ये देखा उसने कुछ नहीं खाया। आज समझ में आई है कि माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, माँ अपने बच्चों से इतनी शफकत करती है। खुद भूखी रही, खुद भूखी रही, लेकिन बच्चों का पेट भर दिया। मेरे आका ने जवाब दिया, आयशा तुमने ये मंजर देखा है, तुम इस बात पर हैरान हो कि माँ अपने बच्चों से किस कदर प्यार और मोहब्बत करती है। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ की अजमत है। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इन बंदों से माँ से 70 गुना बढ़कर ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम उसकी मोहब्बत का क्या कहोगी? वो कितना करीम रब है। हम कुछ भी करते रहे लेकिन हमारे ऐबों पे फिर भी पर्दे डाल के रखता है, हमें कहीं भी बदनाम नहीं होने देता, कहीं भी हमारा नाम नहीं जाता, हमारी इज्जतें वहीं रहती हैं, हमारे मकाम वहीं रहते हैं, हम वैसी दुनिया में बुलंद रहते हैं, लेकिन फिर भी उसी रब को भूले रहते हैं। अरे कभी तो आकर दिल से याद किया करो, ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सखावत की बात की थी, जो मैंने अभी बयान किया, राबिया बसरिया कहती है न जन्नत की लालच हो न दोज़ख की लालच हो, कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। कभी तो अल्लाह की इबादत इस अंदाज से करके, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से प्यार है, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं, कोई और गर्ज नहीं है। जब इस अंदाज से तुम मोहब्बत करोगे, जब इस अंदाज से तुम बात करोगे, तो फिर सारे कर्म होते चले जाएंगे। देखा आपने कितना मकाम मिला औलिया अल्लाह को, कितने बड़े बड़े इम्तिहान लिए जाते हैं, ये आसानी से मकाम नहीं मिल जाते। इस तरह से महबूब नहीं दिखाए जाते कि शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को फौरन दीदार हो गया था। ये सब कर्म की बातें, ये सब कर्म की बातें। आपके पास नहीं है चल कर आया शख्स और उसने आकर कहा कि मैं सैयद हूं। क्या कहा? मैं सैयद हूं। आपने अपनी मसनद पर बिठा दिया, बहुत इज्जत की, पूछा कोई काम, कोई हमारे लायक खिदमत हो, उन्हें कुछ जरूरत थी माल की, आपने माल भी दे दिया। मुरीद जब वो चले गए तो मुरीदों ने आकर कहा, हुजूर आपको वो पता नहीं है, वो जो आपको सैयद कहने वाला था, जिसने कहा मैं सैयद हूं, वो तो कौम का मिरासी है। कौन है? आज को मेरी तरफ तवज्जो रखें, वो कौम का यार एक बात मुझे ये बताएं, मुरीदों को पता है वो कौम का मिरासी है, वली को नहीं पता वो कौन है? वली को नहीं पता, फिर वो शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें नहीं पता था। तुम बताने वाले हो मिरासी है। आप रोने लगे, आशिको तवज्जो, आप रोने लगे। फरमाया तुम मिरासी समझकर देखते रह गए, मैंने उसकी जात को नहीं देखा। मुझे उसने आकर कहा मैं सैयद हूं, मैंने महबूब की नाम की वजह से उसकी इज्जत की है, अपनी मसनद पर बिठाया। अरे तुम्हें क्या खबर, तुम मिरासी समझते रहे, जैसे मैंने उसकी इज्जत की है, मैंने मसनद पर बिठाना था, महबूब ने पर्दे उठा दिए। कहा तुमने मेरे नाम की लाज रखी, आओ हम तुम्हें अपना दीदार कराते हैं। ये सिर्फ इज्जत की बात है।
बुजुर्गों का अदब किया करें, सादात का अदब किया करें, उलमा का अदब किया करें, बुजुर्गों का एहतराम किया करें। आपस में मोहब्बत और शफकत होनी चाहिए। आपस में नमाज पढ़ने के बाद ये नहीं कि हम चले जाएं, फौरन चले जाएं। नमाज में पंजगाना की बात कर रहा हूं। जब मस्जिद में आया करें, एक दूसरे से सलाम लिया करें, खैर खैरियत पूछा करें। हमारा भाई पता नहीं कोई किस मुश्किल में हो, कोई किस मुश्किल में हो, एक दूसरे से मामलात पूछे रखा करें, ताकि हमें खबर हो कि हम आए हैं और एक ही रब के सामने हमने सर सजदे में झुका दिया है। अगले जुम्मे के लिए मैं अर्ज करता चलूं, इंशाअल्लाह अगर रब्बे कायनात ने मुझे जिंदगी दी, बशर्ते जिंदगी, तो इंशाअल्लाह मैं दावत दे रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि आप 12:30 तक मस्जिद में इंटर हो जाएं, क्योंकि हर दफा मेरी दावत तो होती है। मेरा काम तो भाई दावत देना है, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, अर्जी कर सकता हूं। क्योंकि मैं मौजू एक ऐसा दे रहा हूं, मैं 2 नाम ले रहा हूं, 2 नाम अगर वो समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह मैं वो जवाब मिल जाएगा। मैं 2 नाम ले रहा हूं क्योंकि अगले जुम्मे मैंने उन दोनों हस्तियों का जिक्र करना है इंशाल्लाह। और वो 2 नाम ये हैं, पहला नाम है हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह हम अगले जुमे को उनके हवाले से भी जिक्र करेंगे। और दूसरा नाम लेने से पहले मैं एक दुआ दे रहा हूं, मौला जो उनका नाम सुनकर खुशी से सुभान अल्लाह कहें और आज से इरादा करें कि वो पहले ही वक्त में यहां पहुंचे, मौला तू उन्हें उन जैसा इश्क अता फरमा दे। वो मैं नाम ले रहा हूं हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरा काम था दुआ देना, अब मंजूर करना उस रब का काम है। कितने अच्छे लोग बैठे हैं, मैंने काफी आंखों में आंसू देखे हैं। और खुदा की कसम मैं दावे से कह रहा हूं, जब किसी महफिल में एक आंख से भी आंसू निकलता है ना, रब उसकी तरफ देखना वाजिब कर लेता है, देखना वाजिब कर लेता है। और मुझे नहीं याद मैं जब से यहाँ जुम्मा पढ़ा रहा हूँ कोई ऐसा जुम्मा गुजरा हो कि जिसमें आंखों में आंसू ना निकले हो। कहीं ना कहीं करम हो ही जाता है। ये सब करम की बातें, महबूब की निगाह होती है। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को हम जल्दी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, और हम इन दोनों हस्तियों का जिक्र करेंगे। हमें उनसे जितनी मोहब्बत है, अब वैसे करनी तो मेरे महबूब के वो आशिक है। मेरे महबूब ने फरमाया जिसकी वजह से मेरे लाखों उम्मती बख्शे जाएंगे। और पता नहीं जब हम मोहब्बत में आकर पहली सफों में बैठकर जब उनका जिक्र मोहब्बत में सुने तो हो सकता है उन गुनाहगारों में हम उम्मतियों का भी नाम आ जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ दावत देना है तो आप भी दावत देते रहा करें कि वक्त पर पहुंचे, ताकि मैं तफसील से आपको बात समझा सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ये मुख्तसर सी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए, और आप सब जो भी जहां जहां से चल कर आए हैं कदम कदम पे बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।